Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to discuss about the important questions of the chapter Carbon and its compounds. So about the first question, which element has 2 electrons in the first shell and half filled electrons in the second shell? So discussing the solution, 2 electrons in the first shell. As we know, we have 2 electrons in the first shell and then half filled electrons. What do we mean by the half filled electrons in the second shell? That is, we usually have 8 electrons, and now the element which we are talking about is having half filled electrons. That is, it will be having half of this 8 electrons, that is 4. So which element is having atomic number 6? That is 2 and 4, atomic number 6. We know what will be the element: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So answer will be carbon. Now the next question. Name the element having configuration as 287. Now which element has the configuration as 287? We know that this is the element having atomic number 17. That is, how do we know what will be the atomic number? We just count the electrons in the electronic configuration. Here we have 2, 8 and 7. That is 8 plus 2, 10 and 7. That is 17, and which is chlorine. And we know chlorine is, now the question is asking about what it is called. Is it a noble gas, alkali metal, halogen, or a transition metal? So we know that fluorine, chlorine, bromine and iodine, these all are known as halogens. So we'll mark the option as halogen. Now the next question we have, this is the most important question. Most important question, everyone should look carefully. So what is the modern periodic law and who gave it? So the modern periodic law, everyone should learn this by heart. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. This was the modern periodic law, and it was given by Henry Moseley. Not Mendeleev, but Moseley gave the modern periodic law. Now coming on to the next question. Also यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. सो किसी को भी कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक में, सो दे कैन मेंशन इन द कमेंट्स एंड विल डिस्कस द टॉपिक. नाउ nitrogen with the atomic number 7 and phosphorus with the atomic number 15 belong to the group 15 of periodic table. Write electronic configuration of these elements. Also tell which will be the more electronegative element. So now we have been given the atomic number nitrogen 7. Whenever we have been given the atomic number, firstly we will write down the configuration. So configuration of nitrogen will be 2, 5. After writing the configuration, हम देखेंगे कि फॉस्फोरस जो कि नाइट्रोजन के नीचे लाई करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 285, जस्ट लाइक दैट ऑफ नाइट्रोजन. सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. बट फॉर दैट वी शुड नो दैट कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप में लाई करते हैं. नाउ आफ्टर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन दे आर आस्किंग ऑल्सो विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाउ एक ट्रिक हमें पता होनी चाहिए. फर्स्टली क्या होता है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन. तो हमें एक ट्रेंड पता होना चाहिए, फॉन, FON, फॉन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसमें से कि पहला एलिमेंट जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन. सो वी नो दैट जब भी हम ग्रुप में यहाँ जाते हैं, किसी भी पीरियड में जाते हैं, तो फ्लोरीन यहाँ लाई करता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, और फ्लोरीन से नीचे जाते हैं तो फूलों की बाहर आई, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन.
तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी हम किसी ग्रुप से नीचे जाते हैं तो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमें पता है अब यहाँ पर अपने फोन एलिमेंट से कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम जब ग्रुप में जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तब ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होगा। तो हमें पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो नाइट्रोजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किससे, फॉस्फोरस से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3 एलिमेंट्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो हम 3 कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट शेल में। तो 2 and 1, 3, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का। अब क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, ये तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और सेम ग्रुप में कौन कौन लाइक करता है, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। तो हम क्या देखेंगे, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 सोडियम। लिथियम के नीचे लाई करता है ना, फिर सोडियम के नीचे कौन लाई करता है, पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ये एक पीरियड का एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। हमें पता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1, यहाँ पे 2,8,2। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं, ये एटॉमिक नंबर 11, ये 12, ये 13, ये 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4। अब 2 चीज़ें याद रखनी है साइज के ट्रेंड को लेके। ये किसका ट्रेंड है, पीरियड का ट्रेंड है। ये किसका ट्रेंड है, ग्रुप का। 2 ट्रेंड्स बताऊंगी, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न फॉलो होगा। ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ट्रेंड्स से, पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक ट्रेंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम ट्रेंड फॉलो होगा। तो क्या देखा हमने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। आफ्टर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशंस हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब थर्ड शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की बात करेंगे 2 आ जाएंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे 3 आ जाएंगे। जैसे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे साइज छोटा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को टाइटली होल्ड करते हैं तो साइज छोटा होता चला जाता है। तो जब भी हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन यहाँ से जाएंगे लेफ्ट टू राइट पीरियड में, क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रेंड, सबसे ज्यादा साइज बढ़ा सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का। पर ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता है जब हम बात करते हैं किसी भी ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ती चली जाती हैं। शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज। हमने देखा था लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2, 1। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2, 8, 1।
पोटेशियम की क्या थी 2881। क्या हो रहा है, शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। शेल्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, फिर सोडियम से बड़ा पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। तो ये हो जाएगा ट्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो ये ट्रेंड फॉलो होता है।